अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हमारा 11वां सेशन है, लेकिन क्लास नंबर 5 है। उम्मीद थी कि कुछ ज्यादा क्लासेस हो पाएगी, लेकिन वी टुक अबाउट 2 days फॉर ईच हदीस। इस वजह से शाबान का महीना जब खत्म हो रहा है, शाबान का महीना चूंकि अब खत्म हो रहा है, अल्लाह ताला ईमान और आफियत के साथ रमजान शरीफ का मुबारक महीना नसीब फरमाए, आमीन। So it was difficult for me to go ahead with further ahadith because we took almost 2 days for each hadith. और ये hadith related to wasila, this is our 3rd session for the hadith on wasila. So basically इस हदीस पाक को पेश करने का मकसद हजरत अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु वाली, the purpose of presenting this hadith is because this is the only hadith they used to present to say wasila is haram. इसके अलावा और कोई इनके पास दलील नहीं है। Only thing what they could say, because Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu sought wasila of Hazrat Abbas radiallahu anhu and he did not take the wasila of Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, that mean it is haram कि हुजूर का वसीला विसाल के बाद लेना हराम है, इसलिए हजरत उमर ने हजरत अब्बास का वसीला लिया। दिस इज द ओनली आर्ग्यूमेंट दे गॉट फॉर वसीला टू से हराम। इसके अलावा कुछ भी इनके पास नहीं। दिस इज ऑल्सो मिसकोटेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वॉट एवर दे प्रेजेंट ऑल आर मिसकोटेड और वर्स कम टू वर्स। वो क्या करेंगे? दे विल रिलेट द वर्सेस टू आइडल वर्शिपर्स रिगार्डिंग वर्शिपिंग और उसको वसीले पे फिट कर देंगे। दिस इज व्हाट डॉक्टर जाकिर नायक डिड when he said there are over 25 verses in the Quran to say wasila is haram. So our question was very explicit, very clear, which verse say that Muslims, believers cannot seek wasila? कौन सी आयत है कि मुसलमान के लिए वसीला हराम करार दिया गया? So he did not have answer because there is no answer. कुरान में कहीं भी वसीले को हराम नहीं कहा गया। So what they try to do is they relate the verses related to the idol worshipping. जैसे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान करीम में, कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, तमाम शफात अल्लाह के लिए है। All the शफात intercession is for Allah. अब what is the point of presenting this verse that all the शफात is for Allah when अल्लाह ताला किससे सिफारिश फरमाएगा? The one who forgives is Allah. So शफात mean interceding. So towards whom Allah is going to intercede? अल्लाह किससे जाके कहेगा कि तू इसे बख्श दे? बख्शने वाला तो खुद अल्लाह ताला है। So कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ doesn't mean that शफात is not there. It means by the will of Allah, by the इजाजत, अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के इज़्न से अंबिया किराम और औलिया किराम शफात करेंगे। अगर ये माना नहीं लेंगे, if we simply say no all the शफात is only for Allah, then अल्लाह किसके सामने इंटरसीड करेगा when he is the Lord? To whom is going to ask now for our forgiveness when Allah is the one who forgives? So इस तरह के verses को present करके and related to idol worshipping. For example, Allah says in the Holy Quran, if you ask the mushrikun कि तुम इन बुतों की पूजा क्यों करते हो? Why are you worshipping these small idols? Then Allah says they will reply, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. हम इन बुतों की पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। So we worship these idols, मा नअबुदुहुम, नअबुदु का लफ्ज है, we worship these idols इल्ला लियुकर्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फा, so that they will make us closer to Allah. अब इस आयत को पेश करके कहेंगे कि देखा, even you are seeking wasila to get closer to Allah, and Allah Taala is talking, saying about the mushrikun कि उन्होंने उनका ऐसा करना ये सही नहीं है। So you are also seeking proximity towards Allah by seeking the wasila of awliya and anbiya. So इसका answer is very clear. We do not worship the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We do not worship Sayyidina Abu Bakr Siddiq. We do not worship Sayyidina Maula Ali. No, we do not worship Ghaus-e Azam or Gharib Nawaz. They are awliya of Allah and we respect them. We do not worship them. और यहाँ मुशरिकीन क्या करते थे? वर्शिपिंग करते थे। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबुना, हम वर्शिप ही इसीलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब कर देंगे। तो वर्शिपिंग की रिलेटेड वर्सेस को
ये लोग फिट करके कहते हैं कि वसीला हराम है, वसीला शिर्क है। तो देयर सच मिसकोटेशन is an indication that they are following the path of the Kharijis. इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हुमा, the son of हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु mentions, and this is in बुखारी शरीफ, कि खारिजाइट्स, खारजी जो है ना, they are worst creation, मखलूक में बदतरीन है, lowest creation, worst creation। अच्छा, lowest का लफ्ज भी नहीं है, worst creation, यानी कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी। क्यों? खारिजी ने क्या किया? Those verses related to idol worshipping, they tried to fit and they did fit towards the believers। मुशरिकीन के ताल्लुक से आने वाली आयतों को मुसलमानों पर फिट किया। तो आज का वहाबी फॉलोअर भी तो यही करता है, मुशरिकीन के ताल्लुक से आने वाली आयतों को मुसलमानों पर फिट करके, सी यू आर कमिटिंग शिर्क by seeking wasila, you are committing haram by seeking wasila। So we don't need to respond to them, we simply say Hazrat Abdullah ibn Umar, the son of Hazrat Umar radiallahu anhuma, said that people like you are the worst creation, so we don't want to talk with the worst creation। इतना ही जवाब है। हमको बदतरीन मखलूक से बात करके करेंगे क्या? हम अल्हम्दुलिल्लाह अशरफुल मखलूकात है। Another point, इंसान, human being regarded as the best in the creation, in best form। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूकात है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला has exalted the human being in the creation of Allah। Allah तबारक व तआला has exalted बनी आदम, the children of Adam alayhi salam। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ताला has given them excellence, उनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, इज्जत बख्शी है। तो इस तरह का मफ़हूम वलक़द कर्रमना बनी आदम। Despite this, being called as the best, being called as the ashraf, being called as such a person, कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, if he is properly following the command of Allah and his Rasul sallallahu alaihi wasallam, and he is a muttaqi, properly following, his rank is higher than the angels of Allah, फरिश्तों से भी बढ़कर, except for the rusulul malaika। फरिश्तों में जो रसूल है ना, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, सो इनसे बढ़कर नहीं है आम फरिश्ते, the common angels, apart from the messengers in the among the angels। तो कॉमन जो फरिश्ते हैं, लफ्ज़ कॉमन it doesn't suit, but in order to explain, आम फरिश्तों से अल्लाह के औलिया का मर्तबा ज्यादा है। तो इंसान कभी कभी इतने मर्तबे पर पहुंच जाता है कि he is being regarded even higher than the angels of Allah तबारक व तआला। लेकिन अगर वो ये काम करता है मुशरिकीन के ताल्लुक से आने वाली आयतों को, if he is trying to fit among for the believers, तो अब ये फरिश्तों से ऊपर तो दूर की बात, फरिश्तों के बराबर भी दूर की बात, बल्कि इंसान उसकी कैटेगरी में भी नहीं है, बल्कि जितनी भी क्रिएशन है उनमें से वर्स्ट क्रिएशन इसको कहा गया। So being insan, where he could achieve the rank to be higher than the rank of the angels, yet by misquoting the verses of the Quran related to the idol worshipping towards the believers, now being an insan, he is regarded as the worst creation। So we are not supposed to be among the worst। हमको तो अच्छा बनना है। तो अच्छा बनने के लिए, अशरफुल मखलूकात ही में उसी रैंक में रहने के लिए, we are following the verses of the Quran and the Hadith, saying seeking wasila of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is absolutely permissible। Okay, अब इस हदीस पाक से let us see what are the explanations given by the scholars of the hadith, because all these days I was mentioning the hadith related to wasila, I was mentioning the verses related to wasila, and I gave some explanations to understand these ahadith and the verses of the Holy Quran। Now some may say कि ये तो एक्सप्लेनेशन आपने दी है, whereas ये मेरा ओन एक्सप्लेनेशन नहीं था, हमने भी उलमा से सुनकर किताबों में पढ़कर बताया है। Yes, there may be some words differed, कि हमने वो एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया होगा, but the meaning is understood। So end of the day, those were terms used by me, so someone can say ये तो आपने बताया है। So let us go and see what did the scholars of the hadith say under this particular hadith। Now Imam Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi, one of the great scholar of the hadith, और इतने great scholar है, such a great scholar कि today a person who is studying usulul hadith, hadith का उसूल जो पढ़ रहा है, hadith के उसूल जो पढ़ रहा है, he also has to read the book written by Imam Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi।
जैसे नुखबतुल फिक्र है। सो इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े आलिम हैं कि किसी को हदीस का इल्म सीखना है तो इनकी किताब को पढ़ना है। सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग हिज बुक, विदाउट रीडिंग हिज बुक, दैट इज ऑल्सो अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कॉलर, अपने से नहीं, अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कॉलर रहकर ही इनकी किताब पढ़ के आदमी उसूल हदीस पढ़ता है। तो इनका इल्म हदीस के मामले में कितना होगा? नाउ दिस इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह, he writes under the hadith on wasila, that is Hazrat Umar radiyallahu anhu sought wasila of Sayyidina Abbas radiyallahu anhu, and that also, as I explained that day, inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina, और ये उसके बाद हम हजरत अब्बास का नाम वहां नहीं है हदीस में, बे अम्मी नबीना, uncle of your Nabi. Ya Allah, we present the wasila of the uncle of your Nabi sallallahu alaihi wasallam. Now, Hazrat Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Hazrat Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi says that when Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala anhu was given this maqam, ये मकाम पर जब उन्हें हजरत उमर ने बिठाया, so हजरत अब्बास radiyallahu anhu ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नहु, ए अल्लाह बेशक तू बला नाजिल नहीं फरमाता मगर गुनाहों के सबब। You do not send मुसीबा upon us, calamities upon us, except for the sins we are committing. ये उनकी आजिज़ी, they are trying to educate us that if you keep committing sins, punishment of Allah तबारक व तआला may come, may descend. अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आ सकता है, तो ये हमारे लिए एक नसीहत है। And या अल्लाह तबारक व तआला, you take off those punishments from us with repentance. जब हम तौबा करते हैं तो या अल्लाह तू तौबा के सदके में बलाओं को दूर फरमा देता है। और या अल्लाह वक़द तवज्जहल क़ौमु, या अल्लाह ये जो कौम है ना, बी मेरी तरफ जो मुतवज्जे हुई, दिस नेशन हु नोबल सहाबा इंक्लूडिंग हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु एंड ऑल दोस सहाबा हु वर प्रेजेंट एट दैट टाइम, बारिश के लिए दुआ करने के लिए। तो वक़द तवज्जहल क़ौमु बी इलैका, या अल्लाह तबारक व तआला ये कौम मेरी तरफ मुतवज्जे हुई है, किस वजह से? लिमकानी इलैका लिमकानी मिन नबीक, या अल्लाह मेरा जो मकाम तेरे नबी से कनेक्टेड है ना, उस वजह से मुझे इन्होंने ये जगह। सो ओ अल्लाह तबारक व तआला, दिस नेशन दे हैव टर्न्ड टुवर्ड्स मी फॉर द रीजन, नॉट बिकॉज आई एम अब्बास, not because I am just a sahabi, because I am connected to your Nabi sallallahu alaihi wasallam. तो ए अल्लाह तबारक व तआला, ये कौम मेरी तरफ जो आई है, मुझे मेरी तरफ से तेरे पास आई है, यानी they have taken my wasila, they have sought my wasila towards you. The reason लिमकानी मिन नबीक, तेरे नबी से जो मेरी निस्बत है ना, उस निस्बत की वजह से या अल्लाह they have approached me, they have sought my wasila. तो हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि या अल्लाह, because I have been selected as great among the Sahaba and Hazrat Umar रदी अल्लाह अन्हु appointed me, या अल्लाह I am praying in your court, you accept my dua. Even if he had made such dua, it would have been accepted. But Hazrat Abbas रदी अल्लाह अन्हु is advising all the people until Qiyamah that this place is given to me because of Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. मेरी उनसे निस्बत है, और वो अल्लाह की बारगाह में इसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं कि या अल्लाह इस वजह से मुझे ये मकाम दिया गया है। तो अब दो चीजें पता चली। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु यूज द टर्म बिअम्मी नबीना, हमारे बिअम्मी नबी, ये तेरे नबी के चचा का वसीला। और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि या अल्लाह तेरे नबी से निस्बत होने की वजह से इन्होंने मुझे ये मकाम दिया, मेरी तरफ मुतवज्जे हुए ताकि मेरे वसीले से तुझसे दुआ मांगे। और क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश नाजिल फरमाई जब उन्होंने ये दुआ की थी। सो इट स्टार्टेड रेनिंग। सो इसमें हजरत इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने एक नतीजा दिया है। ही हैज गिवन द समरी, ही हैज गिवन द कंक्लूजन, ही हैज गिवन अस सच एन एडवाइस व्हिच इज टू बी पॉन्डर्ड। वो क्या है? इस हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के किस्से से, इस वाक़ये से ये पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे सालिहीन और अहले बैत का वसीला जायज है। Now Imam Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi saying this from the incident of Hazrat Abbas radiyallahu anhu, it is apparent
it is clear that it is permissible to present the wasila and take the intercession of the pious servants of Allah, the Salihin, and Ahlul Bayt of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Baytin Nubuwwah, हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के घराने वाले. सो सादाते किराम सरकार अलैहि सलातु वस्सलाम से जो कनेक्टेड है, उनका वसीला भी जायज, सालिहीन का वसीला भी जायज. नाउ दीज पीपल से, इस हदीस से तो ये पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद वसीला हराम है. बट इमाम इब्न हजर अस्कलानी says no. Even Hazrat Abbas radiallahu anhu sought the wasila of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And from this hadith it is proven कि अल्लाह के नेक बंदों का और अहले बैते नबी का वसीला और उनसे सिफारिश करना, उनका इंटरसेशन, ये सब इस्तिहबाब, मुस्तहब है, जायज है. ये मफहूम इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा. और इससे क्या पता चला? That hadith master whose book after reading a person learns about the usul of the hadith, the fundamentals of the hadith, तो वो इमाम ये कह रहे हैं. अब अगर ये लोग कहे कि नहीं हदीस में ये है, इससे ये पता चला, who are you to derive the meaning when already meaning has been derived? इससे मतलब ले जा चुका है और बड़े बड़े बुजुर्गों ने ले लिया. And further, हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि mentions कि इस किस्से से, from this incident, हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का मकाम जो अल्लाह ने उनको फजीलत अता फरमाई, वो भी साबित हो रहा है. The excellence, the rank of Hazrat Abbas radiallahu anhu. This is also proven from this hadith. وَفِيهِ فَضْلُ الْعَبَّاسِ. इस रिवायत से, इस हदीस से हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु का एक्सेलेंस, उनकी फजीलत भी साबित हुई. इतना ही नहीं, वफ़ضل उमर, हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत भी इससे पता चली कि उन्होंने हजरत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के सामने तवाज़ो, हम्बल हो गए. Now, Hazrat Umar radiallahu anhu being the second in rank after all the prophets of Allah, alayhim salatu wa taslim. Hazrat Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu anhu के बाद सबसे बड़ा मकाम Hazrat Umar ibn Khattab radiallahu. So obviously, in rank he is higher than Hazrat Abbas radiallahu anhu. तो Hazrat Abbas radiallahu anhu से higher rank होने के बावजूद भी Hazrat Umar radiallahu anhu is teaching us how to respect the Ahlul Bayt of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम के खानदान के लोग हैं, उनकी ताज़ीम कैसे की जाए और उनके सामने तवाज़ु, हम्बलनेस किस तरह ऑप्ट किया जाए, ये सहाबी इज एक्सप्लेनिंग अस. हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु उस मकाम वाले कि जिनके बारे में रिवायत में आता है कि the knowledge of Hazrat Umar radiallahu anhu is such that if you keep the knowledge of Hazrat Umar on one side of the scale, तराजू के एक पल्ले पे हजरत उमर का नॉलेज रख ले, except of the prophets of Allah and Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. हजरत उमर का नॉलेज one side and रूए जमीन में, people on the surface of this earth, उन सब का नॉलेज other side of the scale, तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए. So it is narrated by, I think, Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, another mujtahid sahabi. He says the knowledge of Hazrat Umar would weigh more than the knowledge of all the people on the earth. रूए ज़मीन के तमाम लोगों के इल्म से ज्यादा हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु का इल्म भारी रहेगा. तो वो उमर रदियल्लाहु अन्हु, एक तो यहाँ तवाज़ु, that he presented himself with adab in the holy court of Sayyidina Abbas radiallahu anhu. And another thing where Hazrat Umar radiallahu anhu says that I wish I was the hair of the chest of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu. काश मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता. इतने बड़े इल्म वाले, इतने बड़े मर्तबे वाले. But how he shows himself in the court of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu. And Hazrat Umar radiallahu anhu also explains us that Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu is beyond our imagination. उनका मर्तबा हम समझ भी नहीं सकते. Because there are narrations that Hazrat Umar radiallahu anhu says, I wish that the entire deeds of my life, मेरी पूरी जिंदगी के तमाम आमाल, कितने आमाल हैं? How many deeds Hazrat Umar radiallahu anhu got? Do you know? Do we know? But Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha questioned this.
towards Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. She raised this that Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, जितने आसमान के तारे हैं क्या उतनी नेकियां किसी आपके उम्मती के पास है? और कमा क़ाल, is there anyone in your ummah whose good deeds are equal to the numbers of the stars in the heavens? अब आसमान में कितने तारे हैं? We are unable to count. लाखों करोड़ों. एक आसमान थोड़ी है, 7 heavens है. एक आसमान, पहले आसमान तक तो हमें कुछ सितारे नजर आ जाएंगे और कितने ऐसे which we are unable to see. हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है. और 7 आसमान. Now this hadith is recorded by साहिब मिशकात in मिशकात शरीफ in बाबुल करामत और बाबू फजल उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर के एक्सेलेंस में गालिब. तो हदीस में ये जुमला नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम would have said कि ओ आयशा, how do I know how many stars are there? I can see only 1 heaven here. एक ही आसमान मैं देख सकता हूँ, 7 आसमान है. How do I know? No. Neither Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam said that, oh Aisha, let me wait for Jibril alayhi salam. When he descends again, I will ask him this question. फिर वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर पूछेंगे और अल्लाह जो जवाब देगा वो जिब्रील अलैहिस्सलाम will pass it to me, then I will respond to you. No? And neither you find in the hadith कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया हो कि let me think. No, कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये फरमाया कि ओ आयशा, जब तक मेरे सामने नेकियां करेंगे I would be able to know, but when he is away from my eyesight, how do I know what are the good deeds he is doing? And oh Aisha, after I leave this world, how many deeds will be performed by Hazrat Umar? How do I know? ये कुछ भी नहीं फरमाया. Apparently कितनी नेकियां करते हैं, चुपके से कितनी नेकियां करते हैं, मुझे कैसे मालूम? No. In light of the hadith, instant reply. What was the reply? Yes, Aisha, that is Hazrat Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, whose good deeds are equivalent to the stars of the sky. और कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इससे दो चीजें पता चली. Neither the stars in all 7 heavens is hidden from the sight of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. एक भी सितारा हुजूर की नजरों से छुपा नहीं है. And no, the deeds of Hazrat Umar radiyallahu anhu from the time he accepted Islam until he leaves this world, total कितनी नेकियां हजरत उमर करेंगे हुजूर पहले से बता दे रहे कि equal to the numbers of the stars. तो इतनी नेकियां वाले हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि I wish all my deeds are given in exchange to Hazrat Abu Bakr Siddiq रदियल्लाहु अन्हु. सारी नेकियां मैं दे दूं एक नेकी के बदले. वो कौन सी नेकी? That good deed which he spent nights and days with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam in cave Thawr. गारे सौर में जो हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने वक्त गुजारा था, उनकी खिदमत की थी, वो एक नेकी मुझे दे दे और सारी जिंदगी की नेकियां ले ले. अब इससे क्या पता चल? तमाम जिंदगी की नेकियां हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, उसमें क्या क्या नहीं है, कितने जिहाद है, हाउ मेनी जिहाद, एंड वन ऑफ द बेस्ट डीड हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, आदिल, जस्ट one of the best deed. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, who used to love and take care and honor those who love Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, one of the best deed. Hazrat Umar radiallahu anhu used to hate those who hate Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, one of the best deed. Why? Because ye bhi hadith mein hai. The one who gives for the sake of Allah, the one who rewards for the sake of Allah, the one who loves for the sake of Allah, the one who hates for the sake of Allah, he has completed his iman. अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी, अल्लाह के लिए देना, अल्लाह के लिए लेना, यानी रोक देना, तो ये जो करता है, he has completed his iman. तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ईमान में तो परफेक्ट थे, बड़े बड़े नेक आमाल भी कर दिए, एंड इतने नेकिया के आसमान के तारों के बराबर. Yet he regards that one deed of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, which was with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam in cave Thawr, as the highest deed, as the most exalted act. तो इससे क्या पता चला? सबसे बड़ी नेकी हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम की ताज़ीम और तौक़ीर और उनके अदब में. The best of the deed is to respect and honor Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. इस पर वाक़यात है, लेकिन I just summarize this. सय्यद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया ना, सिद्दीक बल्कि गार में जहां उन पे दे चुके. हजरत सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हु sacrificed his life for the sake of the rest of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Whereas हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है. This is utmost important to protect the life.
जिंदगी बचाने के लिए आदमी कभी कभी कुछ भी खाने के लिए ना हो, ओनली हराम फूड इज अवेलेबल, तो ही हैज द ऑप्शन टू कंज्यूम दैट हराम मीट और हराम ड्रिंक टू द अमाउंट where he could save his life. अपनी जिंदगी बचाने के लिए जितनी जरूरत हो उतना खाने की इजाजत है, पीने की इजाजत है। वो जान जिसको बचाने के ताल्लुक से ये फरमाया गया, हजरत सिद्दीक अकबर ही सैक्रिफाइस दैट लाइफ आल्सो फॉर द सेक ऑफ द रेस्ट ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जा तो जा फुरूज़े गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु sacrificed his असर सलाह वाई for the sake of the rest of नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, जिसके बारे में कुरान में हिफाजत का जिक्र है, हाफिज़ू अला सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। मुफस्सिरून फरमाते हैं कि वुस्ता यानी बीच वाली नमाज की हिफाजत खासकर यानी असर की नमाज का जिक्र, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की। एंड देन या रसूल अल्लाह, हाँ तूने इन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज। यू हैव रिटर्न द लाइफ टू हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्हें फेर दी नमाज। एंड यू हैव रिटर्न द असर सला टू हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बाय मेकिंग द सन टू राइज अगेन। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। एज अ ड्यूटी ऑफ बीइंग योर गुलाम या रसूल अल्लाह, दे डिड देयर ड्यूटी, they completed their duties by sacrificing the life of Hazrat Abu Bakr Siddiq for the sake of your rest, sacrificing Asr Salah for the sake of your rest। साबित हुआ, इससे क्या पता चला कि जुमला फराइज, जितने भी फराइज है, जान बचाना फर्ज है, नमाज अदा करना फर्ज है, ये सब हुजूर की ताजीम के बाद आते हैं। अब शेर को सुन लीजिए, सिद्दीक बल के गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जा तो जा फुरूज़े गुरर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। हाँ तूने इन्हें जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इबादा इज टू ऑनर, रिस्पेक्ट एंड ओबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की उस नेकी के बारे में हजरत उमर हमें तालीम देते हैं कि माई एंटायर डीड्स ऑफ माई लाइफ आई विश टू एक्सचेंज विद वन डीड ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो वो हजरत उमर इतने बड़े मर्तबे वाले, वो आजिज़ी दिखा रहे हैं कहाँ? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। वाई? बिकॉज हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नॉट ओनली अ सहाबी बट ऑल्सो कनेक्टेड to Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam। Subhanallah। And then Imam Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi ने ये भी फरमाया that Hazrat Umar radiyallahu anhu recognized the rights of Hazrat Abbas radiyallahu ta'ala। So इस हदीस से ये लोग कहते हैं कि वसीला हराम है विसाल शरीफ के बाद। But the scholar of the hadith Imam Ibn Hajar Asqalani rahmatullahi alayhi फरमाते हैं कि वसीला तो जायज है, औलिया का वसीला भी जायज है, अहले बैत का भी वसीला जायज है, और हजरत अब्बास की फजीलत भी साबित, हजरत उमर की फजीलत भी साबित, हजरत उमर का हम्बलनेस भी साबित, और हजरत अब्बास की जो मारिफत है, जो उनकी वैल्यू है, वो भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दिखा दिया। Now, in last 3 days what we spoke about this hadith, let us sum up this summary and some important points from this hadith। Please try to note down this। अब दीगर हदीसें इंग्लिश उर्दू दोनों में है, लेकिन ये पॉइंट्स सिर्फ इंग्लिश में लिखे हुए हैं। Those who do not understand English, I mean do not they are comfortable with Urdu, they can note it down। In this hadith, इस हदीस पाक में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु did not say, उन्होंने ये नहीं कहा कि I seek वसीला of हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु because it is haram or shirk or even makruh to seek the वसीला of नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम after he left this world। ये तो नहीं फरमाया कि मैंने इसलिए हुजूर का वसीला नहीं पेश किया क्योंकि हुजूर का वसीला विसाल शरीफ के बाद हराम है या मकरूह है या शिर्क है, ये तो नहीं फरमाया हजरत उमर ने। सो व्हेन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डिड नॉट से दिस, उन्होंने खुद नहीं फरमाया हराम है तभी मैंने ऐसा किया। हु आर दीज पीपल टू डिराइव एंड से कि बिकॉज इट वाज हराम ओनली हजरत उमर डिड। सो हाउ डिड यू गेट टू नो दिस? किसने बताया?
क्या हजरत उमर ने बताया? नहीं बताया। क्या हजरत इमाम इब्न हजर अस्कलानी द कमेंटेटर ऑफ सही बुखारी ने फरमाया कि नहीं हजरत उमर ने इसीलिए किया था कि हराम है? नो, उन्होंने भी नहीं कहा था। तो तुम कौन होते हो हराम कहने वाले? एंड देयर आर थिंग्स, लॉज, फॉर एग्जाम्पल, किस किस से शादी करना हराम है? हु आर प्रोहिबिटेड इन मैरिज? कुरान स्टेट्स हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, योर मदर्स आर प्रोहिबिटेड फॉर यू। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, योर डॉटर्स आर प्रोहिबिटेड। व अखवातुकुम, योर सिस्टर्स। व खालातुकुम, मासी यानी आंटीज, मम्मी, सिस्टर्स। तो इस तरह हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व खालातुकुम, इस तरह के अल्लाह ताला ने बता दिया है कि ये औरतें हराम है, जिसमें फूफी भी है, फादर सिस्टर इज आल्सो देयर। दीस आर हराम टू मैरी। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अंडरस्टूड कि जो हराम, जो अल्लाह ने नहीं बताया, वो हलाल है। फॉर एग्जाम्पल, खाला की बेटी शादी कर सकते हैं, फूफी की बेटी कर सकते हैं। तो जिससे हराम है वो अल्लाह ने बता दिया। सो प्रोहिबिशंस आर मेंशन्ड, दैट मीन दोस हु हैव नॉट मेंशन्ड एज प्रोहिबिटेड, दोस आर परमिसिबल। खाने में क्या क्या हराम? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर, अल्लाह ने बता दिया ये हराम, ये हराम, ये हराम। अब अगर कोई ये कहे कि गाय का गोश्त हलाल है, कुरान से दिखाओ, सो व्हाट विल से इज, नहीं, अल्लाह ने इसको हराम नहीं फरमाया। अल्लाह ने खिंजीर को हराम फरमाया, खून को हराम फरमाया, और हदीस में भी जो जो चीज हराम फरमा दिया उसके अलावा बाकी जायज है। तो दिस आर बेसिक थिंग्स टू अंडरस्टैंड। If you say no for the permissibility, you also need the evidence. Then we will ask this question. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, he traveled by camel. He slept on the mat. He did not stay in big homes. लेकिन तुम फ्लाइट में सफर करते हो, गाड़ी में सफर करते हो, बड़े बड़े शानदार बिस्तरों पे आराम करते हो, शानदार घरों में रहते हो। तो ये चूंकि मना नहीं फरमाया, नाजायज नहीं है, नॉट प्रोहिबिटेड, सो परमिसिबल। तो जो मना है उसके बारे में जिक्र मौजूद है। तो इसी तरह अगर वसीला हराम होता तो कुरान में होना चाहिए कि हुजूर के विसाल के बाद वसीला हराम है। और इन द हदीस यू शुड शो कि दिस इज मेंशन इन द हदीस दैट आफ्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट दिस वर्ल्ड, सीकिंग वसीला इज हराम। जब नहीं है तो इट्स अंडरस्टूड, इट्स परमिसिबल। बट स्टिल वी गिव अ लॉट ऑफ एविडेंस टू प्रूव दैट सीकिंग वसीला ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड इज परमिसिबल। ये तो हमने एविडेंस आपको दिया भी है, समझाया भी है, और लास्ट ईयर का वसीला नोट्स भी हमने आपकी बारगाह में पेश किया था। सो टू से इट इज हराम, वी से पॉइंट नंबर 1, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु नेवर मेंशन दिस एज हराम और शिर्क और इवन मकरूह। दैट मीन यू हैव नो राइट्स टू से एज हराम। एंड दोस हु से इट इज शिर्क, बिकॉज़ देयर आर सम पीपल हु से वसीला इज शिर्क, इडियोटिक। वसीले का मतलब क्या है? या अल्लाह तेरे नबी के सदक़े में। और शिर्क का मतलब क्या है? एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह। सो इफ यू टेल वसीला इज शिर्क, दैट मीन यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कंसेप्ट एंड द मीनिंग ऑफ द शिर्क, बिकॉज़ शिर्क इज टू एसोसिएट पार्टनर्स एंड वसीला इज टू प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ अल्लाह दैट या अल्लाह थ्रू द वसीला ऑफ योर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां भी इनकी जहालत है। सो दे आर ट्राइंग टू पैच अप थिंग्स, बट अल्हम्दुलिल्लाह दे डू नॉट हैव एनी वे टू रन। They will get caught, and they are caught. Only thing what they could do is to misquote and misguide the common folks by interpreting the verse of the Quran and the Hadith. Point number 2, इसके बरअक्स, on the other hand, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने जो ये फरमाया, इन्ना कुन्ना नतवस्सल, we used to seek wasila, proves that this was the practice of the noble Sahaba, that they kept presenting the wasila of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam। वरना इन्ना कुन्ना क्यों बताए? सो यहां भी वसीला हराम होना कहीं से भी साबित नहीं है। थर्ड, ये हदीस से पाक इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अंडर द चैप्टर ऑफ इस्तिस्का, बारिश ना होते वक्त बारिश के लिए दुआ करना, उसके चैप्टर में इस हदीस को जिक्र फरमाया। एक तो हजरत अब्बास के एक्सेलेंस में और इस चैप्टर में, विद द हेडिंग रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल टू द इमाम टू ऑफर द इस्तिस्का प्रेयर, के उस वक्त जो बड़े थे उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप आइए हमारे साथ, हम नमाज अदा करेंगे सलातुल इस्तिस्का, और बारिश के लिए आपसे दुआ कराएंगे या हम दुआ करेंगे आपके वसीले से। So in order to establish this sunnah, to revive this sunnah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, to go to a place during the time of droughts and to offer prayer and to ask dua, इस सुन्नत को कायम रखने के लिए
हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु का वसीला पेश किया, and Imam Bukhari has recorded this under the chapter of istisqa. So even Imam Bukhari understood that this is to, not to say wasila is haram, but this is to make the sunnah alive. एक सुन्नत को रिवाइव करने के लिए, हयात रखने के लिए ये प्रैक्टिस को किया गया. Point number 4. Hazrat Umar took Hazrat Abbas radiallahu anhu in order to establish the sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thus, in such circumstances, one should follow this sunnah by requesting the leader to offer salah, tul istisqa and pray for the rain. Okay. Point number 4. उस वक्त जितने भी सहाबा थे, no sahabi objected saying, what is the need of wasila when we can ask Allah directly. किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि या उमर आप हजरत अब्बास का भी वसीला क्यों लेते हो? क्या हम डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांग सकते, या अल्लाह तू हमें बारिश अता फरमा? क्यों वसीला? why presenting his wasila? And neither नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी मौजूदगी में हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम का वसीला पेश किया गया था, तो हुजूर ने भी नहीं फरमाया कि why are you presenting my wasila? You should ask Allah directly. There's no need of wasila because Allah listens everything directly. So why are you coming through a wasila? Why are you coming through a means? ना हुजूर ने मना फरमाया और ना ही जितने सहाबा उस वक्त थे उन्होंने मना फरमाया. मना क्यों फरमाते? जब हुजूर ने मना नहीं फरमाया तो सहाबा क्यों मना फरमाएंगे? Understand? Point number 5. This hadith doesn't deny the wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam at all. किसी भी सूरत में इस हदीस से ये साबित होता ही नहीं कि वसीला मना है. किसी भी तरह पूरी हदीस में कहीं से भी आपको वसीला हराम होना इस हदीस से साबित होता ही नहीं. Number 6. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu took Hazrat Abbas radiallahu anhu in order to establish the sunnah of the Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam for rain during the drought. Sorry, ये तो number 4 में आ गया. Hazrat Umar radiallahu anhu has actually sought the wasila of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam by using the term bi ammi nabiyina. कि या अल्लाह हम तेरे नबी के चचा का वसीला पेश करते हैं. वसीला थ्रू द अंकल ऑफ आवर नबी. वसीला थ्रू द अंकल ऑफ आवर नबी बि अम्मी नबीना. इससे क्या पता चला कि हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हुजूर का वसीला ही पेश किया है. यहाँ पे हजरत अब्बास को ले गए बिकॉज ऑफ द कनेक्शन विद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड पॉइंट नंबर 7 which I mentioned in light of the tafsir sharah by Imam Ibn Hajar Asqalani, कि हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हुमा also have sought the wasila of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam by saying, Ya Allah, this nation has approached me due to the relationship you blessed me with of your prophet. जो तूने मुझे तेरे नबी से निस्बत अता की है ना, उस निस्बत की वजह से ये कौम मेरी तरफ अप्रोच की है या अल्लाह. तो उन्होंने भी हजरत अब्बास ने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला ही लिया. Number 8. This hadith also proves that it is permissible to seek the wasila of the Ahlul Bayt and of the pious servants of Allah. ये शरह की रोशनी में. Number 9. The above hadith also elaborates the respect and love towards the Sahaba and Ahlul Bayt. Like Hazrat Umar radiallahu anhu, despite being Amirul Mu'minin है वक्त के खलीफा है. Despite being Amirul Mu'minin and the most exalted in rank after Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, he shows his respect towards the uncle of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And number 10, collective dua for special needs seem to be an established sunnah. आजकल लोग कहते हैं ना कि नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करना ये मना है. Collective dua is bid'ah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not do. Whereas how idiotic they are. नमाज जब बाद जमात पढ़ते हैं और इमाम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, all the people say आमीन, right? तो ये कलेक्टिव हुई कि नहीं? Because क़िराअतुल इमाम is the क़िराअत of the मुक़्तदी. इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत. तो इमाम ने जब दुआ की और सबने आहिस्ता, शाफ़ी मज़हब में आवाज से, हनफी में आहिस्ता आमीन कहा, तो ये कलेक्टिव हो गया ना. तो कलेक्टिव दुआ मना है, बिदअत है. क्या ये लोग बातें कर रहे हैं? और इस हदीस से कलेक्टिव दुआ का भी सबूत मिलता है कि तमाम सहाबा मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किए. अच्छा, फिर रेन, बारिश के लिए दुआ करना वसीले से, ये बारिश है क्या? Rain is a means for living and not having rain is a means for destruction. बारिश का होना हमारी जिंदगी के असबाब के लिए इसकी जरूरत है.
और बारिश का ना होना जिंदगी खतरे में होने की अलामत है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज नीडेड फॉर द ट्रीज टू ग्रो। बगैर पानी के दरख्त कैसे उगेंगे? और दरख्त उगेंगे तो हमको फ्रूट्स मिलेंगे, हमको अनाज मिलेगा, और दरख्त की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। सो रेन इज अ मीन्स फॉर अस टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, and for the oxygen you need trees, and for the trees you need water, and for the fruits, for even wood, लकड़ी के लिए भी दरख्त की जरूरत है। तो दरख्त जो है ना, this is a means what Allah has kept for our living। हमारी जिंदगी के लिए दरख्त का होना बहुत जरूरी, और ये दरख्त पानी नहीं होगा तो कहां से उगेंगे? तो ऐसी चीज जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी बड़ी हिकमतें दुनियावी जिंदगी के लिए रखी है, वो चीज वसीले से जायज है, जिसमें लिविंग भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, रिस्क भी आ गया। तो बारिश का वसीला लेना, बारिश के लिए वसीले से दुआ करना, हर चीज आ गई। अब इंडिविजुअली हम अगर औलाद के लिए वसीले से दुआ मांगे, रोजी में बरकत के लिए मांगे, आफियत के लिए मांगे, कहां से ये शिर्क होगा, कहां से ये हराम होगा? एंड द दुआज वर एक्सेप्टेड फॉर रेन्स थ्रू द वसीला। Hence the noble Sahaba did continue this practice। कबूल हुई तभी साहबा ने कंटिन्यू किया ना। इस तरह मैदान में जाकर वसीले से दुआ किया तो कबूल हुई ना, तो तभी साहबा किराम ने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। तो अब इससे ये पता चला कि किसी भी तरह, किसी भी तरीके से, इन एनी मैनर, कोई भी एक तरीके से भी इस हदीस से वसीले का हराम होना या मकरूह होना साबित होता ही नहीं। So now it is clear that the people who follow Wahhabism, who say wasila is haram or shirk, and they have only this hadith to present to misquote कि Hazrat Umar did not seek the wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam because it is haram। ये अपनी तरफ से कहना हुआ, इसके अलावा और कोई भी दलील इनके पास नहीं है। Therefore, to use this hadith in order to prove that Hazrat Umar ibn Khattab sought the wasila of Hazrat Abbas radiyallahu anhu because it is haram or shirk to seek the wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam after he left this world, is an absolute misinterpretation of the hadith। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इनकी मक्कारी है, इनकी चाल है, इनकी साजिश है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 दिन में 5 टॉपिक्स पर गुफ्तगू की, 5 हदीसों पर। फर्स्ट हदीस व्हाट वी स्पोक अबाउट वाज the 5 exalted names of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam। Ana Muhammad, Ana Ahmad, Al-Mahi, Ana Al-Hashir, Ana Al-Aqib। इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हदीस की रोशनी में we spoke in detail by mentioning the verses of the Quran and the hadith के हमारे नबी से ज्यादा कोई भी ऐसी मखलूक नहीं जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की गई। And there is none in the creation of Allah who has praised अल्लाह तबारक व तआला, who is praising Allah the most, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के सिवा कोई भी नहीं। और फिर हमने दूसरी हदीस पेश की थी जिसमें हौज़े कौसर का मालिक हुजूर अलैहिस्सलाम का होना साबित होता है, खजानों का मालिक होना साबित होता है। तो क्या पता चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is the owner of the Hawdul Kawthar, he is the possessor of the treasures given by Allah tabaraka wa ta'ala। Thus he is the owner of the treasures of Allah tabaraka wa ta'ala, to the extent that he gifted Jannah also to some of the Sahaba of Nabi, to some of his Sahaba। तो ये भी अल्लाह ताला ने इख्तियार अता फरमाए। और तीसरी हदीस क्या थी? उलूम खमसा, 5 secrets of knowledge। What is in the womb of the mother, when there will be rain, what a person will do tomorrow, when a person will die, when is qiyamah। जिसके बारे में द फॉलोअर्स ऑफ वहाबिज्म कहते हैं कि ये 5 चीजें अल्लाह ने हुजूर को अता नहीं की। वी ऑल प्रूव्ड फ्रॉम द वर्सेस ऑफ द कुरान, फ्रॉम द हदीस ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ्रॉम द तफासिर ऑफ द कुरान, दैट अल्लाह ग्रांटेड ऑल दीस नॉलेजेस बिफोर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेफ्ट दिस वर्ल्ड। ऑल दीस नॉलेजेस वर ग्रांटेड, bestowed upon नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और चौथी हदीस थी, whenever, from wherever and whoever sends salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi, salatu wa salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। From whenever, from wherever, whoever sends salam upon Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, instantly listening power of the salam of all the people, instantly responding power of all the people, and recognizing who has sent salam and whose son is he,
whose daughter is he is also known to नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर चीज की अल्लाह ताला ने इल्म हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर चीज का अता फरमाया। और पांचवी हदीस, वसीले पर जिसको लेकर वसीला हराम कहते हैं, उसको लेकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को आज आपके सामने पेश किया। अल्लाह से दुआ है कि इसमें कोई खामी हो गई हो कहने में सुनने में, अल्लाह ताला अपने फजल से माफ फरमाए और हम सबको कुरान और अहादीस की रोशनी में अकायदे अहले सुन्नत समझकर उस पर मजबूती से कायम रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका बना तो इस तरह का कोई कोर्स मुरतब करके वी विल ट्राई टू इंशाअल्लाह डू समथिंग आफ्टर फ्यू मंथ्स। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे, आफियत अता फरमाए, ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, ईमान वाली मौत अता फरमाए और सबकी परेशानियां दूर फरमाए, सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। सरकार गौसे आदम के सदक़े में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत अता फरमाए। अब इसमें ये भी एक देख ले कि ये 5 हदीसों में हमने कितनी बातें सीखी है। यू वुड हैव नोटेड सो मेनी थिंग्स। आपने नोट डाउन किया होगा कि इन 5 हदीसों में कितने अकायद हमारे क्लैरिफाई होते हैं, यहां तक कि हुजूर का दाफिउल बला होना, ये भी हमने पहली हदीस से साबित किया। तो बहुत सारे अकायद के पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इससे साबित होते हैं। तो चाहिए कि यू कीप ऑन रिफरिंग टू दीस नोट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस हु नो अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड गुड, एंड दोस हु आर नॉट फैमिलियर विद दिस, तो उनको चाहिए कि इसको बार बार पढ़े, हो सके तो रिकॉर्डिंग बार बार सुने, किसी आलिम से वेरीफाई भी कर ले, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ ले, किसी भी तरह ईमान को मजबूत करने की कोशिश करे। और फॉलोअर्स ऑफ वहाबिज्म अगर इस तरह के ऑब्जेक्शन करे तो उनको जवाब देने के लिए तैयार रहे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। हजरत एक सवाल है हजरत, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी फरमाइए। जो लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगने को शिर्क तो नहीं लेकिन गलत समझते हैं, क्या तो वो लोग कयामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद ले सकते हैं, और क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करेंगे? देखिए, अगर ईमान पर खात्मा हुआ है, यानी मौत कुफर पे नहीं हुई, ईमान पर हुआ है, तो उसको कयामत के दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद की जरूरत तो होगी ही होगी। अब ये कहना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त कबूल फरमाएंगे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमत से अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए बार बार अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं। तो अगर किसी ने अनजाने में ये कहा है कि शिर्क नहीं है लेकिन जरूरत नहीं है, तो उसको वैसे भी रियलाइज हो जाएगा कयामत के दिन कि जो चीज गलत हो तो अल्लाह की बारगाह में वो कैसे होगा, तो इसका मतलब ये गलत नहीं है। तो चूंकि बेअदबी नहीं है, अनजाने में ऐसा किया है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन अगर किसी ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डिग्रेड करते हुए, यानी ह्यूमिलिएट करते हुए, इवन आउट ऑफ स्लाइटेस्ट डिसरेस्पेक्ट, एक मामूली सी डिसरेस्पेक्ट के तौर पे भी अगर उसने ये कहा हो कि क्या हुजूर को क्या क्या कर सकते हैं हुजूर, यानी डिसरेस्पेक्ट के मोड में अगर कुछ भी कहा है तो वो कुफर हो जाएगा। और कुफर से बचने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा, तौबा करना पड़ेगा, सिरे से मुसलमान होना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता, कुफर पे मरा, तो उसको तो वैसे भी नहीं मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं है, उसका मकसद ऐसा नहीं था, अनजाने में कह दिया या फिर बाद में तौबा कर लिया, कलमा पढ़ लिया, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है उसकी सुनवाई होगी। जज़ाकल्लाह। आज सिर्फ ये एक सवाल आया है। अस्सलाम वालेकुम।